محترم ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے اسلوب کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے. پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے. انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے. انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے. خبروں کے آغاز سے خبر ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر. 6 گارنٹی پر عمل آوری کے لیے پرجا پالنا. کانگریس کی اقتدار و اسکیمات سے عوام خوش و مطمئن. کانگریس حکومت عوام کے لیے. ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ. نئے سال کی مبارکبادی کے لیے دیے جانے والے گلدستوں پر رقم خرچ کرنے کے بجائے غریب طلبہ کی اسی رقم سے امداد کی جائے. ضلع کلکٹر کا مشورہ، جس کا اثر سیاسی، سماجی و خوددار تنظیموں کی جانب سے غریب طلبہ میں بلینکٹس و نوٹ بکس کی ضلع کلکٹر کے ہاتھوں تقسیم. زیر دریافت یا سزائے یافتہ قیدی حق و اپنی رہائی کے لیے لیگل سیل کی خدمات کا سہارا لے. انصاف کی فراہمی کے لیے لیگل سیل کی خدمات. لیگل سیل ذمہ داران. بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف. عوام سے اور عوام کے لیے کانگریس حکومت 6 گارنٹی اسکیموں پر عمل آوری کے لیے پرجا پالنا پروگرام کا انعقاد. عوام کانگریس کے اقتدار و اسکیمات سے خوش و مطمئن. ریاستی وزیر و ضلع انچارج جوپلی کرشنا راؤ کا پرجا پالنا جلسے عام سے خطاب. ضلع کلکٹر نے بھی کی شرکت. ریاستی وزیر کو پیش کیے گلہائے. ریاستی آبکاری اور سیاحت کے وزیر اور ضلع انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے وضاحت کی کہ حکومت نے عوام دی گئی 6 ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے پبلک گورننس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. وزیر جوپلی کرشنا راؤ ہفتے کو نظام آباد ضلع کے بانسواڑہ قانون ساز اسمبلی حلقے کے تحت کوٹگیر منڈل کے کوٹاپلی گاؤں میں منعقدہ عوامی حکمرانی کے اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. ابھیا ہستم کی ضمانتوں کے حوالے سے عوام سے درخواستیں موصول ہوئی. گاؤں والوں اور مقامی عوامی نمائندوں نے وزیر کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی سمت میں خلوص کے ساتھ آگے بڑھ رہی. انہوں نے یاد دلایا کہ اقتدار میں آتے ہی خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی اور راجیو آروگیہ شری کی حد بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ باقی وعدوں کو پورا کرنے کے عزم کے ساتھ حکومت نے پبلک گورننس پروگرام کے ذریعے عوام سے درخواستیں وصول کی ہے. عوامی نظم و نسق کے ذریعے سرکاری مشینری کو عوام کے ہاتھ میں لایا گیا تاکہ اہلکار خود عوام کے پاس آئے اور سرکاری دفاتر کے چکر لگائے بغیر درخواستیں وصول کریں. وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے یقین دلایا کہ جو بھی اہل ہے اسے 6 ضمانتوں کے ذریعے فائدہ پہنچایا جائے گا. انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ تلنگانہ جو در حقیقت ایک امیر ریاست ہے، گزشتہ 9.5 برسوں میں غیر منظم طرز حکمرانی کی وجہ سے قرضوں کا ڈھیر بن گیا ہے. تاہم وزیر نے واضح کیا ہے کہ ان کی حکومت کا مشن انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے. 500,000 روپے کا گیس سلنڈر، 200 یونٹ تک مفت بجلی کسانوں کے لیے، 15,000 روپے سالانہ ریتو بندو، بے زمین زرعی مزدوروں کے لیے سالانہ 12,000 روپے ہے. ضلع کے جیل میں سزا پانے والے قیدی آگے آتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے لیگل ڈیفنس کونسل کی خدمات سے مستفید ہو. ان کی درخواستوں کو ضلع منصف شعبے کے علم میں لاتے ہوئے
इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। चीफ लीगल एड राजकुमार सूबेदार का बयान। शहर के जेल में लीगल एड डिफेंस काउंसिल टीम ने दौरा किया। इस मौके पर हर जेल में कैदी बनकर रहने वालों से चीफ लीगल एड राजकुमार सूबेदार ने कैदियों से मुखातिब होते हुए बताया कि इस जेल में कैदियों को आगे आते हुए लीगल डिफेंस काउंसिल की खिदमत से मुस्तफीद हो, इसके लिए दरख्वास्त दाखिल करने का मशवरा दिया। कैदियों की जानिब से दी गई अर्जियों को जिला मुंसिफ ओहदेदारों के इल्म में लाते हुए इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में डिप्टी लीगल डिफेंस काउंसिल उदय कृष्णा, जिला जेल ओहदेदार अनिल और दीगर भी मौजूद थे। प्रजा पालना प्रोग्राम का निजामाबाद में कामयाब इख्तिताम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस ने अक़लियती इलाकों में अवामी रहनुमाई की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान निजामाबाद में टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन कॉर्पोरेटर्स ने अवामी रहनुमाई की। 28 दिसंबर तक 6 जनवरी के दौरान 6 गारंटी स्कीमों के लिए अवामी दरख्वास्तों को हासिल करने डिवीजन वारी सतह पर काउंटर्स कायम किए गए थे, जहां मजलिसी कॉर्पोरेटर्स कायदीन ने अवाम के दरमियान मौजूद रहते हुए दरख्वास्तों की इजराई खानापूरी अदखाल के लिए मदद फराहम की और ओहदेदारों मुकर्रर मुलाजिमीन से वक्त बर वक्त नुमाइंदगी अवामी शुकूक व शुबहात को दूर करते हुए तालमेल बनाए रखा। शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों में अवाम ने हजारों की तादाद में मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों की मंजूरी और सादा पेपर पर राशन कार्ड के लिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल की। सदर टाउन मजलिस व जिला तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरिस खान के बाशुमूल मजलिस के कॉर्पोरेटर्स, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स, दीगर इब्तिदाई सदूर व मोतमिदीन ने प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान मराकिज पर मौजूद रहते हुए अवामी दरख्वास्तों के अदखाल में रहनुमाई की और प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद में ममदूद व मुआविन बने। वाज़ेह रहे कि आज प्रजा पालना प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया है, जिसके साथ ही जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम से हासिल करदा दरख्वास्तों को ऑनलाइन में इंदराज का आगाज किया जाएगा। तमाम दरख्वास्तों को कंप्यूटराइज के जरिए अहले इस्तिफादा कुनिंदगान की जांच, स्कीमों से मुस्तफीद कराने के इक़दाम किए जाएंगे। निजामाबाद अर्बन हल्के में म्यूनिसिपल DRDO ओहदेदारों और अमले ने मराकिज खिदमत अंजाम दी। नए साल के मौके पर नए साल की मुबारकबादी के तौर पर पेश किए जाने वाले गुल्हाए वक्ती होते हैं। गुल्हाए पेश करने के बजाय सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए जरूरी अशिया इन्हीं पैसों से तकसीम की जाए। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदारों को दिया था मशवरा, जिसका असर सियासी, समाजी व सरकारी ओहदेदारान की जानिब से तलबा में ब्लैंकेट्स और नोटबुक्स की तकसीम जिले के मुख्तलिफ शोबों के हॉस्टल्स में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की जानिब से मुख्तलिफ ओहदेदारों ने तलबा व तालिबात में गर्म ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई। जिला कलेक्टर के मुताबिक अवाम नए साल की मुबारकबाद को लेकर फूलों के गुलदस्ते दिए जाने के बजाय तलबा की सहूलत के लिए इनकी जरूरत की चीजें जैसे नोटबुक्स, ब्लैंकेट्स जैसी चीजों का तोहफा देने के ऐलान से लोगों में काफी शऊर आया। जिले के दिगर शोबों से अवाम में काफी तब्दीलियां आई और जिला ओहदेदारों के साथ राइस मिल्स एसोसिएशन, दिगर कायदीन, अहम शख्सियतों ने सबके साथ मुलाकात करते हुए दिगर शोबों के हमरा ब्लैंकेट्स और नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए बोधन सरकारी इंटीग्रेटेड गर्ल्स हॉस्टल निजामाबाद, रेंजल, डिचपल्ली, आरमू, BC गर्ल्स हॉस्टल में और अरगुल गांव के BC गर्ल्स के तलबा में ब्लैंकेट्स की तकसीम की। BC जिला तरक्याती शोबा ओहदेदार रमेश ने ये बात बताई। जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक 10वीं जमात के तलबा में नोटबुक्स, पेन 10वीं जमात तुलबा व तालिबात में तकसीम की गई। तेलंगाना की आज़ादी के लिए असलहा लेस खातून चाकली आयलामा की हिम्मत ने अपने हुकूक के लिए दिलेरी दिखाई।
दरपल्ली में चाकली आइलम्मा के मुजस्सिमे की रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों नकाब कुशाई। दरपल्ली मंडल मुस्तखर में धोबी संगम की क़यादत में तेलंगाना जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले चाकली आइलम्मा मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से पहुंचकर चाकली आइलम्मा के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर डॉक्टर भूपति रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि चाकली आइलम्मा तेलंगाना की जाबाज सिपाही थी, जिन्होंने राजाओं के जुल्म से मुकाबला किया और तेलंगाना की आज़ादी के लिए देशमुख जैसे लोगों को अपनी हिम्मत के जरिए हिलाकर रख दिया और तेलंगाना की आज़ादी के लिए एक नई जान डाली। राजाओं के जुल्म के खिलाफ देशमुख जैसे जमींदारों से शाना बशाना लड़ते हुए अवाम में शऊर लाया। इस प्रोग्राम में दरपल्ली धोबी संगम के कायदी, मुकामी सरपंच बालराज, सारिका और दीगर भी मौजूद थे। प्रजा पालना प्रोग्राम अवाम के लिए। कांग्रेस अवामी हुक्मरानी के जरिए अवाम की फलाह व रियासत की तरक्की की पाबंद अहद है। 6 गारंटी स्कीमों से गरीब अवाम को मुस्तफीद कराने में पार्टी का हर रुकन पूरी जिम्मेदारी से काम करे। 12वें डिवीजन में मोहम्मद अली शब्बीर की आमद पर प्रजा पालना प्रोग्राम से खिताब। 12वें डिवीजन कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद मुजाहिद खान ने किया वारहाना इस्तकबाल। शहर के 12वें डिवीजन में मुनक्किदा प्रजा पालना के खुसूसी काउंटर का साबिका रियासती वजीर अर्बन इंचार्ज मोहम्मद अली शब्बीर ने वहां पहुंचकर जायजा लिया और अवाम की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों पर ओहदेदारान से बातचीत की। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की आमद पर 12वें डिवीजन इंचार्ज मोहम्मद मुजाहिद खान ने दीगर कायदीन के हमरा मोहम्मद अली शब्बीर का वालहाना इस्तकबाल किया और गुल्हाए पेश किए और प्रजा पालना में दरख्वास्तों की खाना पूरी के लिए रहनुमाई और अवामी मसाइल को मोहम्मद अली शब्बीर के सामने पेश किया। साबिका रियासती वजीर ने डिवीजन इंचार्ज मोहम्मद मुजाहिद खान की जानिब से मुसलसिल अवामी रहनुमाई और ताउन की सताइश की और अवाम से बात करते हुए अवामी शक व शुबहात को दूर किया और बताया कि कांग्रेस अपने वादे की पाबंद है और अवाम की सहूलत के लिए अपने वादे के मुताबिक 6 गारंटी पर अमल करने के लिए दरख्वास्तें हासिल की गई और मुस्तहिक अफराद की शनाख्त करते हुए स्कीमों से गरीब अवाम को मुस्तफीद किया जाएगा। अवाम से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। 30वें डिवीजन में मुनक्किदा प्रजा पालना प्रोग्राम का साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने लिया जायजा। कांग्रेसी कायद मोहम्मद समी ने मोहम्मद अली शब्बीर का किया वारहाना इस्तकबाल। मोहम्मद समी की जानिब से दरखास्तें दाखिल करने में अवामी रहनुमाई की। साबिका रियासती वजीर ने की सताइश। शहर के 30वें डिवीजन में हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा प्रजा पालना के लिए खुसूसी काउंटर कायम किया गया, जिसका कल शाम साबिका रियासती वजीर व हल्का इंचार्ज कांग्रेस मोहम्मद अली शब्बीर ने वहां पहुंचकर तफसीली जायजा लिया और अवाम की जानिब से दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों और तरीक़ेकार पर मुतल्लिका ओहदेदारान से बातचीत की और अवाम से भी मुलाकातें करते हुए फॉर्मों की खाना पूरी और हुकूमत की स्कीमात पर अवाम को वक्फियत दी। इस मौके पर इनके हमरा 30वें डिवीजन कांग्रेस कायद मोहम्मद समीउद्दीन भी मौजूद थे। साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की आमद पर मोहम्मद समी ने वारहाना इस्तकबाल किया और दरख्वास्तें दाखिल करने की तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ियत दी। साबिका रियासती वजीर ने मुसलसिल मोहम्मद समी की जानिब से अवामी रहनुमाई और दरख्वास्तें दाखिल करने में ताउन पर इनकी खिदमत की सताइश की और कांग्रेस हुकूमत की इन स्कीमात से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने का अवाम को मशवरा दिया। इसके बाद मोहम्मद अली शब्बीर साबिका रियासती वजीर ने इलाके की खदीम व मशहूर होटल समी में चायनोश करते हुए अवाम से बातचीत की। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाली मजहबी व समाजी शख्सियात ने इस्लामिक कैलेंडर का रस्मी इजरा करते हुए मुबारकबाद पेश की। मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, इमाम खतीब मस्जिद फरहत उनीसा, मुफ्ती महबूब खान हुस्सामी, सदर खासी शहर, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी निजामाबाद मोहतरमा पी पद्मावती, माहिर अतफाल डॉक्टर मजाज अहमद खान और नायब सदर मस्जिद इस्लामिया मोहम्मद यूसुफ, आरजू ज्वेलर्स ने अल तक़वीमुल इस्लामी पैकेज साइज
जंत्री का आज रस्म इजरा करते हुए कहा कि हर कैलेंडर अपने अपने शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए बनाया जाता है, मगर नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल खय्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया ने पैकेट साइज ये इस्लामी जंत्री हर शहरी की जरूरत को सामने रखते हुए मुरत्तिब किया, जो अपने जाहिरी हुस्न के साथ साथ दड़ा ज़ैब जाजिब नजर खूबसूरत टाइटल वाली है, जिसमें इस्लामी व ईसवी तारीख के अलावा 5 वक्ता नमाजों के औकात, रोजमर्रा पढ़ी जाने वाली मसनून दुआओं के अलावा इमरजेंसी खिदमात वाले शोबों, मुल्की, रियासती और जिले व शहरी उलमा इकराम, हुफ्फाज और सियासी समाजी कारकुनान वो सोसाइटियों के राब्ते नंबरात मौजूद हैं। डॉक्टरों और मुस्लिम विकला व दवाखानों के फ़ोन नंबरात को शामिल करके हर शहरी की ज़रूरियात का एक बेहतरीन ज़ख़ीरा तैयार किया, जो फ़ायदे से खाली नहीं। वाज़ेह है कि ये जंत्री पहले मज़हरुल उलूम के नाम से मौसूम थी, मगर इस साल चंद मुश्किलात व नागुरेज़ वजूहात की बिना पर इसको इस्लामिक जंत्री के नाम से मौसूम कर दिया गया। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल खय्यूम शाकिर कासमी ने बताया कि ये जंत्री बास मुआविनीन के ताउन से तबाह कराई जाती है, जिसकी आमदनी भी शहर में चलने वाले दीनी मकातिब पर खर्च होती है। इस मौके पर मौलाना ने जुमला मुआविनीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। नेज़ इस जंत्री की तरतीब व तज़यीन में जिन जिन अहबाब ने जिस कदर भी जिस हैसियत से भी ताउन किया, इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए मुसलमाना ने निज़ामाबाद से इस्तिफादे की अपील की। इफ्तिताई तकरीब में मौलाना अरशद अली कासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद कासमी, मुफ्ती शेख सोहेल कासमी, हाफिज राशिद मोहम्मद जीशा, हाफिज सलमान, मौलाना अबरार कासमी, हाफिज फुरखान के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। नोट, ये जंत्री मदीना बुकडिगो अहमदी बाजार निज़ामाबाद पर बराए फरोख्त मौजूद रहेगी। आज तक़वीमुल इस्लामी जंत्री का यहाँ पर रस्म इजरा हुआ है, जिसके लिए हज़रत मौलाना खय्यूम शाकिर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और ये तक़वीमुल इस्लामी जंत्री सन 1445 और 2024 के लिहाज से तैयार की गई है। इसमें इस नाजुक और मशगूलियत के दौर में, मसरूफ़ तरीन दौर में लोगों की सहूलत के लिए इस्लामी तारीख़ और शमसी तारीख़ का भी तफसीलात मौजूद है। उसके अलावा इसमें इस्लामी उलमा किराम के नंबरात भी मौजूद हैं और डॉक्टरों के भी नंबरात भी मौजूद हैं। उसके अलावा रियासत के बड़े बड़े अकाबिर उलमा किराम के नंबरात भी मौजूद हैं। मैं शहरियान निज़ामाबाद से गुजारिश करता हूँ कि इस मसरूफ़ दौर में अपनी पास इस ऐसी बेहतरीन जंत्री को साथ में रख के कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में बिला मजहब व मिल्लत तरक्की अमल में लाई जाएगी। बीआरएस के दौरे इख्तिदार में कायदीन ने अपने खजानों को भरने की कोशिश में रियासत को कर्जों में डुबो दिया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का बयान। दरपल्ली में एमएलए की हैसियत से कामयाबी के बाद पहली बार रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की आमद पर अवाम ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन्होंने सबसे पहले गांव के आगाज में पेद्दम्मा मंदिर में दाखिल होते हुए पूजा की। इसके बाद दरपल्ली में मुनक्किद किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि इंतखाबात में किए गए वादों में से सोनिया गांधी ने जीतने के 2 दिन ही में 6 गारंटी स्कीमों में से 2 स्कीमों का आगाज कर दिया और 6 गारंटी स्कीमों के लिए दरख्वास्त फार्मों को अवाम के घर तक पहुंचाया गया। दरख्वास्तों की वसूली के लिए गांव के सेक्रेटरीज मशहूर हो गए। अवाम परेशान ना हो। गुज़िश्ता की बीआरएस हुकूमत ने रियासत को कर्जों में डुबो दिया था। कल तक के बीआरएस एमएलए ने अपने मकसदों में कामयाबी कर लेते हुए अपने जाती खजानों को भर लिया। हल्के में कहीं भी तरक्की नहीं की। मंडल में बेघरों के लिए घरों के मसाइल की जल्द ही एकसुई अमल में लाई जाएगी। इंदरमा घरों की तकसीम के जरिए वो कमी को भी पूरा किया जाएगा। अवामी मसाइल की जल्द एकसुई का इन्होंने तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी सरपंच बालराज सारिका, कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజంగానే ఇంద్రమ్మ రాజ్యం వస్తుంది। ఇవాళ మీరు చూసిండ్రు
గవర్నమెంట్ వచ్చిన మొదటి రోజే ఇక్కడ కేసీఆర్ గడీలను బద్దలు కొట్టినామా లేదా? ఏ టీఎస్పీఎస్సీ కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చినా కానీ అదే టీఎస్పీఎస్సీని పెట్టి పేపర్లు అమ్ముకున్న ఘనత టీఆర్ఎస్ కాదా? మరి ఇవాళ దాన్ని రద్దు చేసినాం. ఇవాళ స్వయాన మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలనే పార్లమెంట్లో నిదర్శనంగా బహిష్కరిస్తే మేమే ధర్నా చౌక్లో కూర్చున్నాం. ధర్నా చౌక్ కూడా ఓపెన్ అయింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ధర్నా చేయడము, నిరసన వ్యక్తం చేయడము, హక్కుల కొరకు పోరాటం చేయమనేది ఒక ప్రాథమిక హక్కు. ధర్నా చౌక్ మూసేసిరి. ప్రగతి భవన్లో ఎంట్రీ లేదు, సెక్రటరియట్లో ఎంట్రీ లేదు. మీరందరూ కూడా కావాలంటే ఒకసారి బస్సులో తీసుకపోతే మీరు సెక్రటరియట్ ఒకటి చూసిరండి ఎంత జనసందోహంగా ఉందో ఈరోజు. ప్రతి పేదవానికి, ప్రతి అర్హుడికి, ప్రతి గ్రీవెన్స్ డే పెట్టినాము. అంటే ఇది ప్రజాపాలన అంటే, ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల కొరకు ఉంటుంది, ప్రజాస్వామ్యం పద్ధతిగా నడుస్తుంది. కాబట్టి ఇవాళ మేము ఏమంటున్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిందే అధికారంలో స్వేచ్ఛ కొరకు, అదేవిధంగా సమానత్వం కొరకు, మరి సామాజిక న్యాయం కొరకు. కాబట్టి ఇవాళ మీకు చెప్పడం కాదు, ఈ అప్లికేషన్ ఎట్లాగో మీరు ఫిలప్ చేస్తారు, మీకు ఎట్లాగో ఆ కంప్యూటర్ కానీ అయిపోతుంది, మీకు అన్నీ వస్తాయి దశల వారీగా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ 100% కట్టుబడి ఉంది. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 6 गारंटी पर अमलावरी के लिए प्रजा पालना, कांग्रेस की इख्तिदार व स्कीमात से अवाम खुश व मुतमईन। कांग्रेस हुकूमत अवाम के लिए, रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव। नए साल की मुबारकबादी के लिए दिए जाने वाले गुलदस्तों पर रकम खर्च करने के बजाय गरीब तलबा की उसी रकम से इमदाद की जाए, जिला कलेक्टर का मशवरा, जिसका असर सियासी, समाजी व खुददार तंजीमों की जानिब से गरीब तलबा में ब्लैंकेट्स व नोटबुक्स की जिला कलेक्टर के हाथों तकसीम। ज़ेरे दरियाफ्त या सजाए याफ्ता कैदी हक वो अपनी रिहाई के लिए लीगल सेल की खिदमत का सहारा ले। इंसाफ की फराहमी के लिए लीगल सेल की खिदमत, लीगल सेल जिम्मेदारान। तो ये थे खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।